हेलो अंकित। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। आपका इंटरव्यू कौन किसके लिए है? सर बार के लिए। आपका भी बीआरसी के लिए? यस सर। आपकी ब्रांच? इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग सर। इलेक्ट्रिकल। यस सर। गुड। ओके अंकित, योर सर इंटरव्यू। सर बार्क। हम स्नैप इंटरव्यू ट्रांसफार्मर और डीसी मशीन के लिए देना चाहते हैं। ट्रांसफार्मर एंड डीसी मशीन। यस सर। यस। ओके। Why we call the transformer is a constant flux machine? Sir, in transformer, when we give the supply, then transformer draw magnetizing current from the source, which create flux in the transformer, and load is off. And when a load is connected, then secondary then load draw current from the transformer. This current this current produce flux in the secondary winding. This current links with secondary winding. Due to this secondary of load current produce flux in transformer. This flux oppose primary no load mmf. So total mmf in transformer decrease. So चूंकि total flux decrease, so no load EMF, so EMF induced in primary side also decrease. So transformer draw some extra amount of current to compensate secondary flux. Thus magnetizing current thus इस प्रकार only magnetizing flux is present in the transformer. Okay. सर इसको हम डायग्राम के थ्रू सर और अच्छे से एक्सप्लेनेशन कर सकते हैं सर। हाँ ठीक है, वेरी गुड। Now tell me the what is linkage flux? The flux which link only one winding, not both winding, is called linkage flux. How do we incorporate this leakage flux effect in transformer performance? सॉरी सर, सर क्वेश्चन सर सुना नहीं दिया क्लियर। How do we include this leakage flux effect in transformer performance? सर how do we linkage flux in performance of transformer सर? Transform how it's affect the transformer performance. Sir, it increase voltage regulation. In case of rising load, it increase due to this flux linkage. Linkage reactance come into the picture, and for rising load, it increase voltage regulation in transformer, sir. Due to Good. this transformer performance decrease. Okay. What is the hysteresis and eddy current losses? Okay, sir. As we know that transformer is made of core material, and when we not give the supply, the molecule in magnetic material are aligned in random. But we give supply in magnetic material, then her first positive cycle molecule in the magnetic material are aligned in one direction, and for next cycle molecule in magnetic material are aligned in different direction. So in in cycle, as we see that the molecule in the magnetic the orientation of molecule in magnetic material change in each cycle. So power loss due to this reversal of magnetization is called hysteresis losses. And eddy current loss, as we know that ki ट्रांसफार्मर मैग्नेटिक ट्रांसफार्मर सर जिस मेटल का बना होता है
मैग्नेटिक मटेरियल का, वो Yes. प्योरली सा मैग्नेटिक मटेरियल नहीं होता, उसमें कुछ ना कुछ कंडक्टिंग पार्ट होता है। एंड जब फ्लक्स पासेस दिस मैग्नेटिक मटेरियल, some induced EMF produced. Due to this induced EMF, circulating current flow, and due to this current are called circulating current, and power loss due to this circulating current is called eddy current loss. What measure we applied to reduce the eddy currents? Sorry sir, सुना नहीं सर। Measure we use, what measures मतलब we use to reduce eddy currents? सर इसके लिए हम ट्रांसफार्मर का सर, ट्रांसफार्मर में सर हम ट्रांसफार्मर को हम एक सिंगल सॉलिड स्ट्रक्चर से न बनाकर एक लेमिनेशन के थ्रू एक स्मॉल पार्ट्स के थ्रू डिवाइड कर देते हैं, और इस स्मॉल पार्ट को हम एक लेमिनेशन कर देते हैं ताकि एडी करंट लॉसेस रिड्यूस हो सके। Okay. Can we improve the material also? यस सर, हम मटेरियल को भी इम्प्रूव कर सकते हैं। सिलिकॉन, चूंकि ट्रांसफार्मर में जो मटेरियल होता है वो सिलिकॉन स्टील मटेरियल होता है, उसको हम कूलिंग और हीटिंग प्रोसेस के थ्रू उस सिलिकॉन स्टील मटेरियल को हम CRGO स्टील में कन्वर्ट कर सकते हैं। यस सर। DC machine. Next, your favorite topic is DC machine, na? यस सर। Okay. What is the which machine would you prefer to use in traction? Sir, DC series motor because it provides high starting torque at starting. Okay. Why it provide the high starting torque? High starting torque. Okay. Sir, at starting, the flux in DC series, as we know that T equal to K phi IA. So in starting, this flux is directly proportional to current. So at starting, the torque is directly proportional to IA square. So at the starting, due to this current, due to square nature, this produce high starting torque, and at steady time, the relation between torque and IA is linear, so it provides the starting torque. What is the use of compensating winding? Sir, we use compensating winding to improve demagnetizing part in the demagnetizing in DC machine. Demagnet. Okay. सर जो पोल फेज की जो रीजन सर जो मैग्नेटिक, सर जैसे इसका बता रहा था सर, जैसे हम डीसी मशीन में करंट करते हैं तो आर्मेचर में करंट फ्लो होता है। ड्यू टू दिस आर्मेचर करंट एमएमएफ प्रोड्यूस होता है, जिससे कारण सर ये मेन फील्ड फ्लक्स डिस्टार्ट हो जाती है। तो हम कंपनसेटिंग वाइंडिंग का यूज इसलिए करते हैं ताकि जो पोल फेज रीजन में जो मैग्नेटिक फील्ड जो डिस्टार्ट हुई है उसको सर ये कंपनसेट कर देता है। और इंटरपोल का यूज किस लिए करते हैं? इंटरपोल का यूज सर हम वोल्टेज कम्यूटेशन को इम्प्रूव करने के लिए करते हैं, और साथ साथ इंटरपोलर रीजन में जो आर्मेचर रिएक्शन का जो इफेक्ट है उसको मिनिमाइज करने के लिए करते हैं सर। Okay. सर जो पोल फेज की जो रीजन सर जो मैग्नेटिक सर जैसे इसका बता रहा था सर, जैसे हम डीसी मशीन में लोड करंट करते हैं तो आर्मेचर में करंट फ्लो होता है,
ठीक। दोनों के होते हैं। आर्मेचर रिएक्शन का इफेक्ट डिमैग्नेटाइजिंग होता है, क्रॉस मैग्नेटाइजिंग? सर बोथ होता है, बोथ आर्मेचर रिएक्शन का। क्रॉस। नो सर, क्रॉस मैग्नेटाइजिंग भी होता है और डीमैग्नेटाइजिंग दोनों होता है। दोनों होता है। यस सर। व्हाट इज द मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस? Okay, sir. So the axis which is perpendicular to main field, the axis which is perpendicular to the main field axis is called मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस। सर इस मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस पर ही हम ब्रूस को प्लेस करते हैं। मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस पे ही ब्रूसेस को हम पुट करते हैं, मतलब ब्रूसेस को ही हम रखते हैं ताकि स्पार्चिंग का प्रॉब्लम ना आ सके। ओके। कभी कभी जो डीसी जनरेटर होता है यस सर। उसमें वोल्टेज इंड्यूस नहीं होती। व्हाट इज द प्रोबेबल रीजन ऑफ दैट? सॉरी सर, आई सर क्वेश्चन से क्लियर नहीं था। इन डीसी शंट जनरेटर यस सर। sometimes there is no induced voltage when we run the DC generator. What is the probable reason? ओके सर। सर इसका रीजन मेनली 4 हो सकता है। मे बी फील्ड वाइंडिंग ऑफ डीसी शंट जनरेटर इज नॉट हैव एनी रेसिडुअल फ्लक्स, और सेकेंड रीजन ये हो सकता है कि फील्ड वाइंडिंग इज रॉन्गली कनेक्टेड टू पोलैरिटी ऑफ आर्मेचर वाइंडिंग, and third reason may be critical field resistance of field winding is greater than the sir field resistance is greater than the critical field resistance, and speed of generator is less than critical speed. Okay. So then what we do in that case to generate the voltage? Okay. सर फर्स्ट रीजन में जब हम जैसे फील्ड वाइंडिंग में कोई फ्लक्स ना हो तो उसके लिए एक मेथड यूज करते हैं, फील्ड फ्लैशिंग मेथड। उसके थ्रू हम फील्ड वाइंडिंग को हम डीसी सप्लाई से कनेक्ट करते हैं, और जिसके कारण इसमें कुछ रेसिडुअल फ्लक्स क्रिएट हो जाता है, एंड देन वी पुट फील्ड वाइंडिंग इन देन वी पुट डीसी दिस फील्ड वाइंडिंग इन पैरेलल विद आर्मेचर वाइंडिंग। सेकेंड का रीजन ये हो सकता है कि अगर ये रॉन्गली कनेक्टेड है तो इसको करेक्ट पोलैरिटी में कनेक्ट करें, और थर्ड का रीजन ये हो सकता है कि जो इसका रेजिस्टेंस था क्रिटिकल रेजिस्टेंस से ज़्यादा था उसको कम कर दें, और फोर्थ का इसको हम क्रिटिकल स्पीड से एबव स्पीड पे रोटेट करें, तब ये वोल्टेज बिल्डअप प्रोसेस हो सकता है। Which DC machine is self-protected machine? प्रोटेक्टेड। Self-protected machine. यस नो आइडिया। सर नो आइडिया। No idea. Okay. डीसी जनरेटर में इलेक्ट्रिकल टॉर्क एंड मैकेनिकल टॉर्क यस सर।
Which one is more? तो डीसी जनरेटर में Hmm. ओके सर सर स्टेडी स्टेट ऑपरेशन पे सर दोनों इक्वल होगा दोनों स्टेडी equal? स्टेट When both torque are equal, why, how the machine will run? ओके सर सर जैसा कि डीसी जनरेटर में जैसे हम सब करंट हम प्रोवाइड करते हैं इसके कारण सर आर्मेचर पे सर फोर्स प्रोड्यूस होता है ड्यू टू दिस फोर्स टॉर्क प्रोड्यूस होता है टॉर्क प्रोड्यूस के कारण सर आर्मेचर कॉइल रोटेट करना शुरू हो जाता आर्मेचर कॉइल रोटेट करना शुरू हो जाता है but as we know that ki when a rotating conductor is placed in the magnetic field then EMF then when rotating no sir Okay. ओके सर सवाल मतलब मैं सॉल्व करता हूँ इसको कोई problem नहीं. Now, if we run DC series motor at no load, यस सर what will be the speed? if we drive DC series motor at no load yes sir it rotate at very dangerous speed sir because due to this as we know that ki speed is inversely proportional to flux due to if we start if we start DC series motor at starting condition due to this residual flux the field speed of DC series motor will be very high sir so it rotate at very dangerous speed What is the differentially compound generator? differentially compound generator सर बेसिकली डिफरेंशियली कंपाउंड जनरेटर में जो सीरीज फील्ड होती है सीरीज फील्ड अपोज करती है शंट फील्ड को सर और सीरीज फील्ड और आर्मेचर आर कनेक्टेड इन पैरेलल विद द शंट फील्ड एंड सप्लाई चलो अंकित, अब मैं आपको आपका वो फीडबैक देता हूँ. आपने पढ़ाई अच्छे से कर रखी है, ठीक है. थोड़ा और इम्प्रूवमेंट करने की जरूरत है, ठीक है. और ऐसा जरूरी नहीं है कि सारी आप इंग्लिश में ही बात करें, ठीक है ना. जो आपको जिस लैंग्वेज में कंफर्ट लग रहा है तो आप थोड़े उसके वर्ड यूज कर सकते हैं बीच में, ठीक है ना. सर मैं डायग्राम के थ्रू सर और अच्छे से सर इस चीज को सर एक्सप्लेनेशन कर सकता हूँ हाँ, जैसे आपने वो किसी यहाँ पे डीसी इसमें जनरेटर का सर ऑपरेशन पूछा था ये चीज पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना. सेकंड, अगर आपको डायग्राम से सॉल्व करना है तो एक बोर्ड आप वैसे ही बना के कैमरे के सामने रख सकते हैं. तो आई विल सी, यू विल राइट ऑन द बोर्ड. आई सर विल, मैंने रखा था सर मैंने रखा था सर कॉपी सर कॉपी ताकि सर आप क्वेश्चन तो सर मैं ड्रा करके दिखा सकूँ सेकंड जो और भी क्वेश्चन जैसे मैंने पूछा, सेल्फ प्रोटेक्टेड मशीन होती है डीसी शंट जनरेटर एंड डिफरेंशियली कंपाउंड जनरेटर. ओके सर डीसी शंट जनरेटर एंड डिफरेंशियली कंपाउंड जनरेटर. डिफरेंशियली अब कंपाउंड जैसे जैसे लोड इंक्रीज करते हैं तो इनकी करंट का कर्व नीचे आता रहता है और वोल्टेज भी फिर बाद में जाके नीचे मिल जाती है, जीरो ओके वोल्टेज चलता आ जाता है, ठीक है यस ना. सर यस तो सर केवल उसमें आई ए आर ए का लॉसेस ही इतना ही वोल्टेज इंक्रीज होता होगा, तो उसमें करंट नहीं बढ़ेगी लोड बढ़ाने के साथ साथ, ठीक है ना. है तो ओके सेल्फ मशीन बोली जाती है, ठीक है. ओके सर और ओके. सर जैसे जो मैं रिप्लाई कर रहा था सर तो सर उसको देख के सर ऐसा लग रहा था कि सर कॉन्फिडेंस है कि नहीं जैसे
क्योंकि एक आध दो सर और भी सब्जेक्ट का स्नैप इंटरव्यू दिया हूँ, तो सर उसमें कहते हैं कि अंकित आप क्वेश्चन तो सही मतलब आंसर तो दे लेते हैं, बट ऐसा लगता है कि आप में थोड़ा कॉन्फिडेंस की सर कमी लगती है। नहीं नहीं, कॉन्फिडेंस वाली बात नहीं है, वो थोड़ा सा है लैंग्वेज की उसका वो हो रहा है, उसमें कॉन्फिडेंस नहीं है। कॉन्फिडेंस आपके एफर्ट्स पॉजिटिव लग रहे हैं, ठीक है ना, कि आपने मेहनत किया है, एफर्ट्स पॉजिटिव है। वो थोड़ा सा कम्युनिकेशन का कुछ वो है, उससे कोई इतना मेजर एफर्ट नहीं पड़ता है अगर आपके एफर्ट्स अच्छे हैं तो। लेकिन उसमें आप सर से कह सकते हैं मैं आई यूज सर हिंदी वर्ड्स आल्सो, तो वो कहेंगे परमिशन करके हाँ ठीक यस सर। है। ऐसा कुछ नहीं है कि दे विल आस्क हार्ड एंड फास्ट, लेकिन फॉर योर इम्प्रूवमेंट यू मस्ट ट्राई टू लर्न आंसर इन इंग्लिश, ठीक है ना, यस कोई सर। भूल नहीं है। यस सर। सेकंड, आपके जो क्वेश्चंस हैं, जो टॉपिक्स हैं अपने चूज किए हैं, ठीक है ना, थोड़ा यस और भी उनको अच्छे से रिफाइन करो, अच्छे से वो करो आंसर करने के लिए, ठीक है ना। यस सब कॉन्सेप्ट बन रहे हैं, आपके कॉन्सेप्ट आ रहे हैं, ठीक है ना। यस सर। आर्मेचर रिएक्शंस को आप अच्छे से पढ़िएगा, ठीक है ना। कंपनसेटिंग मुझे सर थोड़ा सा लगा कि सर आर्मेचर रिएक्शन में थोड़ा सा अनकंफर्टेबल जा रहे हैं सर, तो उसको सर रिवाइज कर। is used to minimize the effect of armature reaction under the pole, यस सर। and interpole is used to minimize the armature reaction effect in interpole region, यानी between the poles, ठीक है ना। यस सर। यस And सर। also the voltage commutation is due to the reactance of the winding, ठीक कॉइल की जगह से जो रिएक्टेंस होता है उससे कहाँ सा रिएक्टेंस वोल्टेज प्रोड्यूस होता है। है ना। यस सर। तो सर और सर ओवरऑल फीडबैक कैसा रहा सर मेरा जैसे। ओवरऑल ठीक है। आपका जो एफर्ट है वो आपके क्या बोलते हैं फेथफुल है, उनमें वो नहीं है, आप एफर्ट कर रहे हैं, ठीक है ना, तो वो एक पॉजिटिव पॉइंट है आपका, ठीक है ना। और यस इम्प्रूव सर। करोगे तो और भी ज्यादा अच्छा लगेगा, ठीक है। ओके सर। चलिए ऑल द बेस्ट अंकित, ठीक है ना, अच्छे से ओके। तैयारी करना, ठीक है। गुड बाय। ओके थैंक यू सर। ओके।